Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, dear students, we will be talking about one more example regarding this Picard's method, and this example has been taken from your book and essay Bhatti Saab, and the page number is I guess 170. Okay, 70. So in this method, this example has three parts. In the first part, they have asked you that you have to apply this method over this ordinary differential equation and subject to this initial condition. Over here, y is equals to 0. They didn't write it. आगे जाके इन्होंने इसको लिखा हुआ है. At x naught is equals to 0, y naught is equals to 0 क्योंकि ये जनरल नहीं हो सकता एक्सप्रेशन. ठीक है. Now one thing you note, they haven't mentioned कि आपने किस order approximation तक इसको लेके जाना है. So if they don't mention, at least I will mention it in the questions, and it should be because you will be getting a general expression. So वो general expression तो match नहीं हो सकता ना, because typical value हो, definite integral हो, x की कोई जैसे भी पीछे मैंने last lecture में बताई थी 0.2 थी, तो उसमें तो you can judge कि कितने decimal places तक मैंने उसको match करना है. But in this case they didn't mention anything. So what we will do, third approximation तक इसको उन्होंने stop किया and we will do that, and of course as far as my question is concerned then I will definitely write it. Okay, किस approximation तक आपने इसको लेके चलना है. ठीक है. However, in the first part you have to find that general expression at least up till third order approximation. Then in the second part they have mentioned you that you have to write the corresponding values of y for these values of x, and your answer should be correct up till 5 decimal places. So we will do this as well. ये tabulate इसको करेंगे और फिर उसके बाद हम इसका expression निकाल लेंगे, answers जो होंगे वो निकालेंगे. And then the third part they have mentioned that if you are going to truncate your series, ये जो solution आकर निकलेगा x, अगर x power 8 तक की terms पे if you truncate your terms, then what would be the range जिसमें आपका solution जो है वो lie कर रहा है up till 5 decimal places. ठीक है. तो इसको कैसे करना है I will let you know. You don't have to get confused. Initial approximation, now they have mentioned at x naught is equals to 0, y naught is equals to 0. इन्होंने इसको y ऊपर लिखा हुआ है पावर में 0, तो इट्स बेटर टू राइट इट इन द सबस्क्रिप्ट y naught is equals to 0. ये सुपरस्क्रिप्ट में ना ही लिखें तो इट्स बेटर, क्योंकि समटाइम्स यू हैव these kind of powers, तो फिर उसको मल्टीप्लिकेशन करने में पे यू विल जस्ट गेट कन्फ्यूज अगर ब्रैकेट्स ना डाली हो तो. ठीक है. तो जस्ट डोंट राइट इट इन द सुपरस्क्रिप्ट, जस्ट ट्राई टू राइट इट इन द सबस्क्रिप्ट्स. ओके. तो फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन पे वी विल गो फर्स्ट. लेट्स सी व्हाट इट विल डू. सो द I told you people, first of all you should write the general formula. Yn is equal to y naught plus x naught to x, and then f of x comma yn minus 1 into dx. Okay. Y naught is 0. ये डायरेक्ट स्टार्ट किया फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन से एन को वैल्यू दे दी n 1, तो x नॉट यहाँ पे यू शुड राइट इट. ये इसको यहाँ पे ये जर्नल लिखने की जरूरत नहीं है. y नॉट की वैल्यू पुट करें, दैट इज 0 ओवर हियर. x नॉट इज ऑल्सो 0 ओवर हियर. 0 से x की कोई टिपिकल वैल्यू गिवन है नहीं. और जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो क्या था अभी एफ ऑफ एक्स वाई, दैट वाज एक्स प्लस वाई स्क्वेयर. ठीक है. तो फर्स्ट जो है वो वाई एन माइनस 1 है, तो इसलिए एन को जब हम वो देंगे तो वैल्यू फर्स्ट एन इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो दैट विल बी एक्स प्लस वाई नॉट का होल स्क्वेयर डी एक्स, एंड वाई नॉट इज 0, सो इट विल जस्ट वैनिश एंड यू विल बी लेफ्ट विद एक्स ओनली. सो दैट विल बी इफ यू इंटीग्रेट इट तो यू विल बी गेटिंग एज y1 is equals to the general expression, and that is x square over 2. Okay. Now we will go for the second approximation. For second approximation again y naught एक दफ़ा 0 पुट कर दिया बस, ठीक है, फिर ख़त्म हो जाएगा. प्लस 0 to x plus y1 square. now y1 was x square over 2, और उसका स्क्वेयर करेंगे तो you will be getting x4 over 4. ये यहाँ पे टाइप ऑफ मिस्टेक है, दैट दिस शुड बी 4. ओके. x प्लस x4 ओवर 4 इंटू डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग x स्क्वेयर ओवर 2
प्लस x5/20, क्योंकि बिकॉज देयर वॉज 4 और पे इंटीग्रेशन का फैक्टर 5, तो 4 into 5 दैट विल बी 20. दिस इज करेक्ट. दिस शुड बी 4 over here. Okay. Now second approximation निकाली. Now you will move towards the third approximation. अब यहाँ पे type of mistake है. This should be third approximation. Okay. y3 that is equals to y0 plus 0 to x plus x plus y2 का स्क्वायर. Now x plus y2, ये जो आपने एक्सप्रेशन निकाला है जर्नल, पुट इट ओवर हियर का स्क्वायर इनटू dx. इस स्क्वायर को पहले ओपन करें बाद यू विल बी गेटिंग दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, 0 to x इंटू दिस एक्सप्रेशन इंटू dx. जस्ट इंटीग्रेटेड, पुट इन द वैल्यू 0, तो वो तो वैसे ही 0 हो जाएगा, सबको ख़त्म करेगा. और x तो आपके जो होगा वो एक जनरल एक्सप्रेशन आपको दे देगा. तो जो y3 द थर्ड एक्सप्रेशन विल बी y3 इज इक्वल टू x3/2 प्लस x5/20 प्लस x6/160 प्लस x11/4400. ओके, दिस इज योर जनरल एक्सप्रेशन. यहाँ तक जो फर्स्ट पार्ट था दैट इज कंप्लीटेड. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट. Second part, in the second part they asked us to tabulate the values of x of y for these values of x. ठीक है, यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इन दोनों एक्सप्रेशन में से डिफरेंस इतना है कि ये इसको नेस्टेड एक्सप्रेशन की फॉर्म में, नेस्टेड पॉलिनॉमियल जैसे ये देखें, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये इस तरह की फॉर्म में लिखना इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज ये भी आपको एक सेम आंसर देगा और ये भी आपको सेम आंसर दे देगा. ठीक है, तो इट्स बेटर टू कीप योर एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्म. कोई ऐसा कोई टिपिकल वैल्यू आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी. ठीक है ना, यू डू नॉट हैव टू गेट कंफ्यूज विद द नेस्टेड पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन. ठीक है, ये जैसे सिंपल कॉमन लेके जैसे लिखा होता है, ये उस्ताद से इन्होंने इसको लिखा हुआ है. ओके, नाउ दे फॉर द टेबल दे हैव मेंशन 0 से स्टार्ट करना है, 0.5 पे एंड करना है, और स्टेप साइज जो है आपका वो 0.1 है. ओके, since they asked us that you have to fix your answer up till 5 decimal places, क्वेश्चन में मेंशन है. so what you will do, first आपने x को स्टार्ट किया 0 से, 0.1 का वो स्टेप साइज दिया, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. फिक्स योर कैलकुलेटर्स अप टिल 5 डेसिमल प्लेसेस, पुट इन दैट एक्सप्रेशन, वो जो 6.5 वाला एक्सप्रेशन है उसमें x को वैल्यूज़ पुट करते जाएँ. फर्स्ट वैल्यू आपको ऑफकोर्स 0 देगी, फिर उसके बाद जैसे जैसे आपके पास वैल्यूज़ हैं उसको इसमें पुट इन करें, and you will be getting your answer correct to the 5 decimal places. This will end the second part. ठीक है, जितना लिखा हो क्वेश्चन में मेंशन किया हो सिर्फ वहीं तक किया करें. ठीक है, उससे ज़्यादा कि शायद इसको ये भी करना था, ये भी करना, यू डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज विद दैट थिंग. ओके, तो जितना एक्सप्रेशन उन्होंने मांगा हुआ था वो वी हैव डन दैट. नाउ इन द थर्ड पार्ट दे आस्क्ड अस दैट वी हैव टू ट्रंकेट आवर टर्म्स. अब ये जो सीरीज पीछे भी निकली है x8 तक, जो जनरल एक्सप्रेशन था जो अभी कि हमने निकाला है 6.5 में, यू कैन सी x8 तक ट्रंकेट करना है. x8 की तो टर्म नहीं है, नो वरी, लेकिन x8 से आगे मैंने इसको प्रोसीड नहीं करना. 9, 10, 11 जितनी भी टर्म्स हैं, तो x8 से पिछली जितनी टर्म्स हैं ये वाली यू कैन सी वो है. x8 तक जितनी टर्म्स हैं या x8 से छोटी छोटी वो ये टर्म्स हैं, और सिर्फ बड़ी जितनी भी टर्म्स हैं यू हैव टू जस्ट टर्मिनेट योर सीरीज. ये x11/4400 वाली जो टर्म है हम इसको डिस्कार्ड करेंगे. इसको डिस्कार्ड करने से जो हमारा अब जो सोल्यूशन जो उसकी रेंज है वो क्या पॉसिबल होनी चाहिए, एक्स की क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए ताकि एरर्स जो हैं वो हमारे पास ना आए. तो उसको कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, यू डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज. दे हैव मेंशन वो जो टर्म जिसको हमने ट्रंकेट किया दैट इज़ x11/4400. अब क्या है कि दैट आंसर शुड बी करेक्ट अप टिल 5 डेसिमल प्लेसेस. तो दिस टर्म शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 raised to the power -n, जो कि हमारे पास जनरल एक वो एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला होता है. एंड n इज ओवर हेयर mentioned as 5 decimal places, so we will put it over here 1/2 into 10 raised to the power -5. अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन ये इनइक्वालिटी है, व्हाट यू विल डू, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होगी, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन जो 0 थी और कहाँ तक मैक्सिमम इसकी वैल्यू जाएगी, वी विल जस्ट कैलकुलेट इट. उसके लिए क्या करेंगे, 4400 को वहाँ पे लेके जाएं, लाइक ओवर हेयर 4400 इंटू 1/2 इंटू 10 raised to the power -5, और ये जो 11 है इसको ख़त्म करें
जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं 1/11 करके हम उसको निकालेंगे, कैलकुलेटर just use your calculator and you will be getting your answer as 0.71. So the maximum value जहाँ तक आपका solution range जो है जो आपकी वो follow करेगी that is 0.71. वो जो range find करनी थी that will start from initially 0 and that will end up at 0.71. तो इतना ही इन्होंने find करना था और ये इसका तरीका है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताए थे कि यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5A था, उसका शायद कोई पार्ट 1 था, और 8 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने वैसे इसको A मेंशन किया हुआ है क्योंकि उसमें दे हैव मेंशन द पिकर्स मेथड एंड द टेलर सीरीज मेथड। एट दिस स्टेज आपने अभी जो पिकर्स मेथड से रिलेटेड है उसमें भी कुछ इसी किस्म का क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई हैव मेक दिस एग्जाम्पल फॉर यू एज वेल। तो आपने उसको जो है वो करना है, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ टेल मी, ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस इन ब्लैक एंड वाइट। रेस्ट आपके पास जो टॉपिक है दैट इज़ अवेलेबल ऑन द गूगल, उससे रिलेटेड सॉल्व एग्जाम्पल्स जितनी आप कर सकते हैं इजीली ब्लैक एंड वाइट में आप उसको करें, ठीक है। तो दैट विल जस्ट इन्हेंस योर क्लैरिफिकेशन इन दिस रिगार्ड। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।